Good afternoon, students. We discussed earlier about the introduction of our legislature and the need of our parliament. Today we start the next topic of this chapter, that why do we need two houses of parliaments. As you know that the union legislature is called parliament, and there are two houses. One is Rajya Sabha and one is Lok Sabha. So there is a question that why do we need the two houses of parliament? Why do not we have only the single house of parliament? तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है यहाँ पर कि संसद में दो सदनों की व्यवस्था क्यों की गई है, इसके पीछे कौन से कारण हैं. लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर लेजिस्लेचर. द टर्म Parliament means the union legislature. The legislature of states is known as state legislature. Yes, legislature is at the state level, it is also known as state legislature, and on the union level that is known as parliament. केंद्र स्तर पर हम इसे संसद कहते हैं और राज्य स्तर पर हम इसे राज्य विधानसभा के रूप में जानते हैं. When a legislature has two houses, it is known as bicameral legislature. अगर किसी भी जो आपका विधान पालिका होता है उसमें दो सदन होते हैं तो इसे द्विसदनात्मक विधान पालिका कहते हैं. And when it has got a single house, it is known as unicameral legislature. अगर इसमें एक ही हाउस होता है तो उसे हम कौन सा लेजिस्लेचर कहते हैं? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, एक सदनात्मक विधान पालिका कहते हैं. इंडियन पार्लियामेंट हैज़ गोट अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंप्राइजिंग ऑफ. भारतीय संसद में दो सदन हैं, उसके क्या कारण हैं? लेट अस स्टार्ट. द लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल विच इज़ द लोअर हाउस इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. सो द फर्स्ट हाउस दैट इज़ लोकसभा विच इज़ अ लोअर हाउस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल बिकॉज दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. पहला जो हमारा सदन है लोकसभा, जिसको एक निम्न सदन कहा जाता है, जिसको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है. इसे आम जनता का भी सदन कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज द राज्यसभा. द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा का जो दूसरा नाम है वो राज्यों की सभा है. इट मीन्स इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया. विच इज़ द अपर हाउस इज़ इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. ये ऊपरी सदन है जो किन सदस्यों के द्वारा? जो स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं. द स्टेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन गिवन द राइट टू चूज अ बाइकैमरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू चूज that whether the state they choose bicameral legislature or the unicameral legislature. At present, 6 Indian states, Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana and Uttar Pradesh have bicameral legislature. Before 2019, when Jammu and Kashmir was the state of India, at that time Jammu and Kashmir had also the bicameral legislature. But at present we have 6 states which have bicameral legislature. वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है वो व्यवस्थित है या पाया जाता है. अपर हाउस इज नॉन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज विधान परिषद, एंड लोअर हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. India adopted a bicameral legislature due to the following reasons. Now what are the reasons that at the central level we have two houses of parliament? कौन कौन से ऐसे कारण हैं? The first one is that India is a country with large size. As you know that India's size like as a continent and diversity, and the two houses in the union legislature give it an opportunity to give adequate representation to all sections of the society. भारत एक विशाल देश है, भारत विविधताओं वाला देश है. अगर हमारे देश के अंदर संसद के अंदर दो सदन हैं तो ये लोगों को एक अवसर देते हैं कि इसका हिस्सा बनने का, देश की जो सरकार है, शासन व्यवस्था है, उसमें हिस्सेदारी करने का और जितने भी समुदाय हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने का. Second, it gives adequate representation to all geographical region
or parts of the country. There are different parts of our nation. We have 28 states and 9 union territories at present. So if we have 2 houses, it means that we are giving the adequate representation to all the geographical regions of our country. It makes it possible to have every decision reconsidered. We have 2 houses. Suppose an ordinary bill is passed by Lok Sabha, and there is a mistake, silly mistake done by Lok Sabha, then there is a chance for reconsideration in which house? In the Rajya Sabha. हर बिल के ऊपर बहस 2 बार होती है. हर बार डिस्कशन और डिबेट के समय कानून की खामियों को दूर किया जाता है. तो अगर हमारे पास अगर 2 सदन हैं संसद के, तो उसमें जो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स होते हैं, उनके जो चांसेस होते हैं काफ़ी क्या होते हैं, हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और हर डिसीजन को क्या किया जा सकता है, रिकन्सिडर किया जा सकता है. इट एंश्योर्स ए क्रॉस चेक ऑन एवरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी और बिल एज इट गोज़ फ्रॉम वन हाउस टू द अदर हाउस फॉर रिविजन. सपोज कीजिए कि कोई भी एक जो सदन है उसने बहुत जल्दी में किसी भी कानून को क्या कर दिया है, किसी बिल को पारित कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं. तो जब वह बिल दूसरे सदन में जाता है तो उस पर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, उसको रिवाइज़ किया जाता है ताकि उसकी कमियों को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके. तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है. 2 सदन होने से जो कमियां हैं उनकी जो गुंजाइश है काफ़ी कम हो जाती है. सो दीज आर द 4 रीजन्स ऑन विच वी कैन से दैट व्हाई इंडिया एडॉप्टेड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. Next topic is institutions of parliamentary democracy. As we know that India has a parliamentary system of democracy which we adopted from United Kingdom or Britain. The Indian Parliament. Legislature of the Indian Parliament, it consists of the President and the 2 houses. As you know that in Indian Parliament there are 3 major components. 2 are the houses. First one is Lok Sabha, that is the House of People, and the second is Rajya Sabha, the Council of States. But President is also the major part of our Indian Parliament, because any bill will become the law after the final assent of our President. That's the reason that we put President in the system of Indian Parliament. कोई भी कानून कब बन पाता है? जब राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी स्वीकृति या हस्ताक्षर कर देते हैं, तभी वह बिल क्या बन पाता है, एक कानून बन पाता है. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन विद आवर हाउस. द फर्स्ट हाउस, दैट इज राज्य सभा. इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 of Indian Constitution, राज्य सभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत हमारे जो राज्यसभा है उनमें सदस्यों की संख्या 250 तक हो सकती है. आउट ऑफ दिस 238 आर इलेक्टेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. इनमें से 238 सदस्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाते हैं. एंड यूनियन टेरिटरीज, वाइल 12 आर नॉमिनेटेड बाय the Indian President. So the maximum number of the strength of Rajya Sabha is 250. Out of 250, 238 are elected from the state assemblies. It means from 28 states and the union territories, and 12 members which are nominated by the Indian President. Now, who are nominated by the President? Those persons, those are very renowned. It means respectable, very famous person in the field of art, sports, then those persons are nominated by the Indian President in the Rajya Sabha. Like Sachin Tendulkar, Rekha, who is a Bollywood heroine, they are nominated as the member of Parliament in the House of Rajya Sabha by the President of India. Rajya Sabha is a permanent house. It means it cannot be dissolved. इसको हम समय से पूर्व भंग नहीं कर सकते हैं. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच मेंबर इज द 6 years. इट मीन्स दैट व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा? द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज 6 years, but its 1/3 member get retired after every 2 years. राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है.
नाउ नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कौन कौन सी योग्यताएं हैं राज्यसभा का अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं। शी ऑब्लिक ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। ही और शी शुड बी 30 ईयर्स एंड अबव ऑफ एज, उसकी आयु 30 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। ही ऑब्लिक शी शुड नॉट बी ए ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मीन्स होता है पागल, इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ऑन हिज माइंड, और अ बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होता है दिवालिया, जिसके पास पैसा ना हो। तो ऐसे व्यक्ति क्या बन सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं जो भारत के नागरिक हों, जिनकी आयु 30 वर्ष या उससे ऊपर की हो, जो पागल या दिवालिया ना हो। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। So as we know that in Haryana there are 5 Rajya Sabha constituencies and the maximum number of Rajya Sabha constituencies is coming from Uttar Pradesh, that is 31. तो जितना भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, नंबर ऑफ सीट्स क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग द स्टेट्स, उसी के बेस पर जो सदस्य हैं राज्यसभा में वो चुनकर आते हैं। द नेक्स्ट वन इज लोकसभा। यू नो दैट लोकसभा is also known as House of People, and it is not a permanent house, but it is more powerful than the Rajya Sabha because Lok Sabha is elected directly by the people, and you know that the meaning of democracy is that rule of people, for the people and by the people. So let us start the Lok Sabha. The Lok Sabha is composed of not more than 552 members. लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 तक हो सकती है। इन शॉर्ट टर्म वी कैन से दैट 530 फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूटीज एंड 2 एंग्लो इंडियंस। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। लोकसभा विच इज ए लोअर हाउस विच कैन बी डिसॉल्व बिफोर इट्स एक्सपायरी टर्म ऑफ 5 years. It is a lower house, it is not permanent, it is House of People, it is more powerful than the Rajya Sabha because the members of Lok Sabha are directly elected by the people. Not more than 530 members are directly elected from territorial constituencies in the states. राज्य से अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है 530. Not more than 20 members are elected directly from constituencies in the UTs. It means 20 से ज़्यादा हम UT से क्या नहीं ले सकते, मेंबर नहीं ले सकते हैं. And 2 Anglo-Indian members are nominated by the president to give the community adequate representation. आंगल जो समुदाय है, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, उनको 2 को प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लोकसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं। सो देयर इज ए इक्वेशन 530 फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूटीज, 2 एंग्लो इंडियन एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा इज 552। नाउ हु आर एंग्लो इंडियंस, किन्हें कहेंगे हम आंग्ल भारतीय समुदाय। The term Anglo-Indian is defined as per the Article 366, Sub-Article 2 of the Indian Constitution, a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line or is or was of European descent but who is a native of India. Anglo-Indian कौन होता है? It is defined by Article 366 पार्ट 2। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कोई भी व्यक्ति जिसके पिता या जिसकी मेल जो पैट्रोनजिस्ट होते हैं, इट मीन्स उनकी पीढ़ी के अंदर अगर कोई भी सदस्य यूरोपियन डिसेंट, इट मीन्स यूरोपियन वंशज रहा हो, बट एक कंडीशन है कि वो कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। तो एंग्लो इंडियन कौन होता है, जिसका कोई भी वंशज मेल पार्ट जो है वो यूरोपियन कंट्री से यूरोपियन डिसेंट हो और भारत का क्या हो, नागरिक हो। नेक्स्ट वन, दैट व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी 25 ईयर्स ऑफ एज, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी ल्यूनेटिक और अ बैंकरप्ट, उसे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए।
Next topic is term. What is the term of Lok Sabha? That is 5 years. The House may be dissolved before the expiry of its full term when the proclamation of emergency is in force. The term of Lok Sabha, according to Article 83, can be extended for a year. There are 3 times when Indian people face emergency. 2 times due to the external reason during the 1971 war and during the Indo-China War of 1962. But first and the last, when due to the internal disturbances, an emergency was imposed by Srimati Indira Gandhi in 1975, then the tenure of Lok Sabha would be extended for 1 year. And this provision was given in which article? In Article 83. 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की आंतरिक बिगड़ती हालातों के ऊपर देश में आपातकाल लगाया था और उस समय लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 1 साल के लिए और 6 साल कर दिया गया था. Members are elected through secret ballot on the basis of adult franchise after every 5 years. जो मेंबर ऑफ लोकसभा है उनका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इट मीन्स दैट एवरी एडल्ट हु इज 18 and above 18 years old in our country has right to vote without any discrimination. So these people, these MPs of Lok Sabha are directly elected by the people. So dear students, today we discuss about that why Indian Parliament has 2 houses and the qualifications to become the member of Lok Sabha and Rajya Sabha. Next we will discuss about the power and functions of the Indian Parliament. Thank you and have a nice day.